Hello students, welcome to One Day Law Revision Module 6 Enforcement Mechanism. Let's quickly go through the synopsis first. Here we will see Establishment and Constitution of Competition Commission of India, that is CCI, Section 7 and 8, Powers and Functions, Section 18 and 19, Director General of Investigation DGI, Penalties and Enforcement, Section 26, Competition Appellate Tribunal Section 53A, Adjudication and Appeals Section 53B, Competition Advocacy, its meaning, competition advocacy in India and international perspective. So let's get started. Point number 1, Establishment of Competition Commission of India, we will call CCI. Central government from the date as and when required can establish or shall establish a body for the purpose of this act, and it will be called as CCI. We can appoint a commission to be known as Competition Commission of India. Commission shall be a body corporate having perpetual succession, matlab never ending, never dying, and a common seal, common stamp, subject to provision of the act, and it will have the right, to hold and dispose of the property, both movable and immovable, and to contract and shall by the said name sue or to be sued. Head office will be the place decided by central government from time to time, and commission can establish office in other places of India. Constitution और commission और composition of commission. जो commission है उसके constitution में एक तो chairperson होगा, and there shall be not less than 2 members and not more than 6. 2 से 6 के बीच में members रहेंगे जिसको central government appoint करेगी. The chairperson as well as the member shall be the person of ability, उनमें ability होनी चाहिए, integrity होनी चाहिए, and standing, and who has special knowledge of, उनके पास special knowledge होना चाहिए, professional experience होना चाहिए of not less than 15 years. Not less than 15 years in what? Subjects are international trade, economics, business, commerce, law, finance, accountancy, management, industry, public affairs or competition matters including competition law and policy, which in the opinion of the central government may be useful to the commission. जो भी सब्जेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को लगते हैं कि कमीशन के लिए यूज़फुल है, वो सब सब्जेक्ट्स का नॉलेज होना चाहिए एंड एक्सपीरियंस ऑफ नॉट लेस देन 15 ईयर्स. जो चेयरपर्सन है, जो अदर मेंबर्स है, दे शुड बी होल टाइम मेंबर्स, मतलब पूरा टाइम उनका इसी काम में जाना चाहिए CCI में. फंक्शंस और ड्यूटीज़ ऑफ कमीशन सेक्शन 18. कमीशन की ड्यूटी रहेगी कि वो एलिमिनेट करेगा ऐसी प्रैक्टिसेस जिसका अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट है कंपटीशन पे, कंपटीशन को प्रमोट करेगा, सस्टेन करेगा, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा और फ्रीडम ऑफ ट्रेड इंश्योर करेगा. मतलब ये क्या हो गया? इन शॉर्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपटीशन एक्ट हो गया. यही 4 पॉइंट्स देखे थे. मतलब कंपटीशन कमीशन का काम क्या है कि कंपटीशन एक्ट के ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करना, राइट. फॉर डिस्चार्जिंग इट्स ड्यूटी और परफॉर्मिंग द फंक्शन, कंपटीशन कमीशन क्या करेगा? विल एंटर इनटू मेमोरेंडम और अरेंजमेंट विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ CG विद एनी एजेंसी और फॉरेन कंट्री. मतलब अग्रीमेंट में एंटर करने के पहले CG का प्रायर अप्रूवल लेना कंपलसरी है. पावर ऑफ कमीशन, इंक्वायरी इनटू सर्टन अग्रीमेंट्स एंड डोमिनेंट पोजीशन ऑफ एंटरप्राइज. कमीशन के पास पावर है कि वो इंक्वायरी बिठा सकता है अगर उसको लग रहा है किसी इंसान ने सेक्शन 3(1) या सेक्शन 4(1) का कॉन्ट्रवेंशन किया है, तो ऑन इट्स ओन मोशन या तो सेल्फ या तो कोई इंफॉर्मेशन मिली उसके बेसिस पे एंड अकम्पनाइड बाय सच फीस एज मे बी डिटरमाइंड बाय रेगुलेशन फ्रॉम एनी पर्सन जिससे इंफॉर्मेशन मिली है, कंज्यूमर और देयर एसोसिएशन ऑफ ट्रेड, या फिर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या कोई स्टेट अथॉरिटी ने, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी ने कोई रेफरेंस दिया है, तो इस बेसिस पे कमीशन इंक्वायरी बिठा सकता है. विदाउट प्रेजुडाइज टू द प्रोविजंस कंटेंट इन सबसेक्शन 1, ये प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए जो
कमीशन के पावर्स और फंक्शंस है वो सेक्शन नंबर 19 के सबसेक्शन 3 से सबसेक्शन 7 तक दिए गए हैं। वो आगे देखते हैं अभी हम। तो सबसेक्शन 3 क्या बोलता है सेक्शन 19 का, while determining whether an agreement has a appreciable adverse effect on competition, कमीशन को कुछ फैक्टर्स का ध्यान रखना है, नेमली क्रिएशन ऑफ बैरियर्स टू न्यू एंट्रेंट्स इन द मार्केट, कि जो फैक्टर है उसके वजह से एक बैरियर बन रहा है टू द न्यू एंट्रेंट्स इन द मार्केट, एग्जिस्टिंग कॉम्पिटिटर्स को ड्राइव आउट कर रहा है वो, फोरक्लोजर ऑफ कॉम्पिटिशन बाय हिंडरिंग एंट्री इन द मार्केट, एंट्री हिंडर की जा रही है, accrual of benefits to customers, improvements in production or distribution of goods or provision of services, promotion of technical, scientific and economic development by means of production or distribution of goods or provision of services. So these factors are to be considered to understand whether the agreement is having appreciable adverse effect on competition. Subsection 4, while inquiring whether an enterprise enjoys a dominant position or not, following factors are to be considered. डोमिनेंट पोजीशन पे है कोई एंटरप्राइज या एसोसिएशन, ये समझने के लिए नीचे वाले फैक्टर्स हमको देखना है कि वो एंटरप्राइज का मार्केट शेयर क्या है, उसका साइज और रिसोर्सेज क्या है, उसके कॉम्पिटिटर्स का साइज और इम्पोर्टेंस क्या है, उस एंटरप्राइज का इकोनॉमिक पावर क्या है इंक्लूडिंग कमर्शियल एडवांटेज ओवर कॉम्पिटिटर्स, वर्टिकल इंटीग्रेशन अगर है तो कोई, अगर कोई सर्विस नेटवर्क है, डिपेंडेंसी ऑफ कंज्यूमर्स ऑन द एंटरप्राइज, मोनोपोली या कोई डोमिनेंट पोजीशन अगर एक्वायर किया गया है एज अ रिजल्ट ऑफ एनी स्टैट्यूट यानी कि लॉ, और बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग अ गवर्नमेंट कंपनी और अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और अदरवाइज, कोई एंट्री बैरियर अगर लगा है इंक्लूडिंग बैरियर सच एज रेगुलेटरी बैरियर्स, फाइनेंशियल रिस्क, हाई कैपिटल कॉस्ट ऑफ एंट्री, marketing entry barriers, technical entry barriers, economies of scale, high cost of sustainable goods or services for consumers, countervailing buying power, market structure and size of market, social obligation and social cost, relative advantage by way of contribution to the economic development by the enterprise enjoying a dominant position, कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कंट्रीब्यूट करते हुए कोई रिलेटिव एडवांटेज वो एंटरप्राइज एंजॉय कर रही है क्या, एनी अदर फैक्टर विच द कमीशन में कंसीडर रेलेवेंट, मतलब एक्सेट्रा। अब ये डिटरमाइन करने के लिए कि वेदर अ मार्केट इज अ रेलेवेंट मार्केट फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट, कमीशन शैल हैव ड्यू रिगार्ड टू रेलेवेंट जोग्राफिक मार्केट एंड रेलेवेंट प्रोडक्ट मार्केट। तो अब रेलेवेंट जोग्राफिक मार्केट है ये समझने के लिए ये फैक्टर्स को कंसीडर करना है, रेगुलेटरी ट्रेड बैरियर्स, लोकल स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट, नेशनल प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज, एडुकेट डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, लैंग्वेज, कंज्यूमर प्रेफरेंस, नीड फॉर सिक्योर और रेगुलर सप्लाई और रैपिड आफ्टर सेल्स सर्विस। और रेलेवेंट प्रोडक्ट मार्केट क्या है उसके लिए क्या फैक्टर्स देखने हैं, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक और एंड यूज ऑफ गुड्स, price of goods or services, consumer preference, exclusion of in-house production, existence of specialized producers, classification of industrial products। ये जो टर्म्स है रेलेवेंट मार्केट हो गया, रेलेवेंट जोग्राफिक मार्केट हो गया, रेलेवेंट प्रोडक्ट मार्केट हो गया, ये हमको पता है इसका मीनिंग क्या है, पता है ना, ये हमने कवर किया है इंपॉर्टेंट डेफिनेशन के मॉड्यूल्स में। मैं बार बार बोल रही हूँ ये सारे कंसेप्ट मैंने पहले ही बहुत अच्छी से कवर किए, so please go and first revise it, then only you will understand the topic. Section 26, procedure for inquiry on complaints under section 19। अब section 19 में जब कंप्लेन आ गया कमीशन के पास, मे बी सो मोटो या किसी के इंफॉर्मेशन से या ऑन रेफरेंस फ्रॉम CG, SG और एनी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, तो अब कमीशन क्या करेगा, इफ commission is of the opinion that there exists a prima facie case, it shall direct the Director General DGI to cause an investigation to be made into the matter. The Director General on receipt of the direction will submit a report of his finding। जैसे ही डायरेक्शन मिला कि इन्वेस्टिगेट करना है मैटर, डायरेक्टर जनरल अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा फाइंडिंग्स की विद इन पीरियड एज में बी स्पेसिफाइड बाय कमीशन। कमीशन ने जितना टाइम दिया उतना टाइम में तुमको रिपोर्ट सबमिट करना है। जब सेक्शन 19 सब सेक्शन 1 एक क्लॉज ए से कंप्लेन आती है और कमीशन को लगता है कि
ऐसा लग रहा है कि कंप्लेंट को डिसमिस कर देना चाहिए, तो इन दैट केस इफ इट डीम्स फिट इट विल डिसमिस इट बाय इंक्लूडिंग द इम्पोजिशन ऑफ कॉस्ट इफ नेसेसरी। और ये रिपोर्ट कमीशन फॉरवर्ड करेगा आगे इन सबसेक्शन 2 टू द पार्टीज कंसर्न, टू द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट और द स्टैट्यूटरी अथॉरिटी एज द केस में बी। अगर डायरेक्टर जनरल का रिपोर्ट उस कंप्लेंट से रिलेटेड है और ये रिपोर्ट रिकमेंड करता है कि दैट देयर इज नो कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, तो कंप्लेनेंट को एक अपॉर्चुनिटी देना चाहिए टू रिबूट द फाइंडिंग्स ऑफ द डायरेक्टर जनरल। अगर कंप्लेनेंट की बात सुनने के बाद कमीशन अग्री करता है विद द रिकमेंडेशन ऑफ डायरेक्टर जनरल, तो केस डिसमिस हो जाएगा। अगर कंप्लेनेंट की बात सुनने के बाद कमीशन को लगता है कि फर्दर इंक्वायरी की ज़रूरत है, तो फिर वो कंप्लेनेंट को डायरेक्ट करेगा टू प्रोसीड विद द कंप्लेंट। अगर जो रिपोर्ट है डायरेक्टर जनरल की दैट इज इन रेफरेंस टू सबसेक्शन 1 और रिपोर्ट रिकमेंड करती है दैट देयर इज नो कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, तो कमीशन क्या करेगा, इनवाइट करेगा कमेंट्स फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या कोई स्टैट्यूटरी अथॉरिटी एज द केस में बी ऑन सच रिपोर्ट, एंड ऑन रिसीट ऑफ सच कमेंट्स कमीशन शैल रिटर्न द reference if there is no prima facie case or proceed with the reference as the complaint if there is a prima facie case। अगर रिपोर्ट एज पर सबसेक्शन 2 है और वो रेकमेंड करती है कि कॉन्ट्रावेंशन हुआ है इन द एक्ट और कमीशन को लगता है कि फर्दर इंक्वायरी की ज़रूरत है, तो इट शैल इंक्वायर इनटू सच कॉन्ट्रावेंशन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ एक्ट। एक्ट के जो प्रोविजन है उसके अकॉर्डिंग देयर विल बी इंक्वायरी। अब सेक्शन 16(1) क्या बोलता है, इट रिलेट्स टू अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर जनरल की डायरेक्टर जनरल का अपॉइंटमेंट कैसे होगा। तो अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर जनरल फॉर असिस्टिंग द कमीशन इन व्हाट, इन कंडक्टिंग द इंक्वायरी, जो अभी हमने देखा सेक्शन नंबर 19 में। इंक्वायरी किस चीज़ की, अगेंस्ट अ पर्सन हु हैज़ डन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ द एक्ट, या फिर टू परफॉर्म एनी फंक्शन मेंशन्ड अंडर द एक्ट। सेक्शन 16 टॉक्स अबाउट अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर जनरल। This can be done by notification by CG for the appointment of Director General to conduct inquiry of the contravention of the provision of the Act. Number of other additional, joint, deputy, assistant Director General shall be appointed by the manner prescribed in Competition Act. Every additional, joint, deputy, assistant director shall exercise their power and discharge their duty as and when required by the direction of Director General. इनका जो सैलरी है, अलाउंसेस से, बाकी टर्म्स कंडीशन से, दे शैल बी प्रिज्यूम टू बी प्रिस्क्राइब्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन प्रिस्क्राइब करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। डायरेक्टर जनरल और एडिशनल, जॉइंट, डिप्यूटी, असिस्टेंट डायरेक्टर, ये सबका अपॉइंटमेंट विल बी डन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड विल बी फ्रॉम अमॉन्गस्ट द पर्सन ऑफ इंटीग्रिटी एंड आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी, और जिसके पास एक्सपीरियंस है ऑफ इन्वेस्टिगेशन, नॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, बिजनेस, public administration, international law, trade or economics and such other qualification as may be prescribed. Competition Appellate Tribunal, National Company Law Appellate Tribunal मतलब NACLAT, जो कंपनी लॉ का एप्लेट ट्रिब्यूनल है, अंडर सेक्शन 410 shall on and from the commencement of part 14 of chapter 6 of Finance Act 2017 be the appellate tribunal for the purpose of this act। मतलब जो नैकलेट है वो कॉम्पिटिशन एक्ट का कॉम्पिटिशन एप्लेट ट्रिब्यूनल है। ही विल हियर एंड डिस्पोज द केस पास्ड बाय कमीशन अंडर सेक्शन 26 सबसेक्शन 2 and 6, 27, 28, 31, 32, 33, 38, 39, 43, 43A, 44, 45, 46, various sections. Adjudicate on claim for compensation that may arise from the findings of the commission or the orders of the appellate tribunal in any appeal against any finding of the commission under section 42A or under subsection 2 of section 53Q and pass an order for recovery of compensation। ये हो गया कॉम्पिटिशन एप्लेट ट्रिब्यूनल का। अब अपील टू एप्लेट ट्रिब्यूनल, सीजी या एसजी या कोई लोकल अथॉरिटी या एंटरप्राइज या कोई भी पर्सन जिसको डिसीजन नहीं पसंद आ रहा है, ही कैन रेफर टू एप्लेट ट्रिब्यूनल। जो भी अपील एप्लेट ट्रिब्यूनल के पास जाता है वो 60 डेज में जाएगा फ्रॉम द कॉपी ऑफ डिसीजन और ऑर्डर दैट इज मेड बाय द कमीशन
एंड इज रिसीव बाय CGSG या लोकल अथॉरिटी या एंटरप्राइज। प्रोवाइडेड दैट एपलेट ट्रिब्यूनल में एंटरटेन एन अपील, अगर 60 डेज में अपील नहीं फाइल हुआ, एक्सपायरी हो गई, तो फिर भी एपलेट ट्रिब्यूनल उसको एंटरटेन कर सकता है इफ इज सेटिस्फाइड दैट देयर वाज अ सफिशिएंट कॉज, कोई रीज़न के वजह से वो 60 डेज में नहीं फाइल किया गया तो फिर फाइल किया जा सकता। अब सबसेक्शन 1 में अपील मिलने के बाद एपलेट ट्रिब्यूनल आफ्टर गिविंग द पार्टीज टू एन अपील एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, जो ऑर्डर उसको ठीक लगता है वो पास कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं या सेट असाइड कर सकते हैं डिसीजन को। एपलेट ट्रिब्यूनल अपने ऑर्डर का कॉपी कमीशन को भी भेजेगा एंड द पार्टीज ऑफ द अपील। जो अपील फाइल हुआ है एपलेट ट्रिब्यूनल के पास अंडर सबसेक्शन 1 शैल बी डिस्पोज ऑफ विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट, 6 महीने के अंदर, अपील मिलने के 6 महीने के अंदर उसको डिस्पोज ऑफ करने का टाइम लिमिट है। कॉम्पिटिशन एडवोकेसी, कॉम्पिटिशन एडवोकेसी मतलब कंसेप्ट ऑफ प्रमोशन ऑफ कॉम्पिटिशन प्रिंसिपल्स, कॉम्पिटिशन प्रिंसिपल्स को प्रमोट करना है इन पॉलिसी रिलेटेड डिबेट एंड रेगुलेटरी फोर्स प्रोसेस अंडर द कॉम्पिटिशन प्रिंसिपल विद द वेरियस स्टेक होल्डर्स ऑफ द सोसाइटी। अब कौन है स्टेक होल्डर्स? गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी एट लार्ज, पब्लिक, इवन प्राइवेट एंटिटी। मतलब मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, जो कंपटीशन के पॉलिसीज है, लॉज है, उसको प्रमोट करना। बहुत से स्कॉलर्स, रिसर्चर्स ने आर्ग्यू किया कि कंपटीशन एडवोकेसी एंड कंपटीशन एनफोर्समेंट शुड बी इंटरकनेक्टेड एज द इनैक्टमेंट ऑफ कंपटीशन लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपटीशन अथॉरिटी अंडर द स्पेसिफिक एनैक्टमेंट इज इटसेल्फ अ पार्ट ऑफ कंपटीशन एडवोकेसी। कंपटीशन एडवोकेसी इन इंडिया, इंडिया में कंपटीशन एडवोकेसी कब एमर्ज हुई? जब 2002 में हमें समझा कि MRTP एक्ट को एबॉलिश करने की ज़रूरत है और एक न्यू कंपटीशन एक्ट को लाने की ज़रूरत है। जो न्यू इंडियन कंपटीशन एक्ट और पॉलिसीज़ है उन्होंने कंपटीशन एडवोकेसी को बहुत इंपॉर्टेंस दिया। कंपटीशन एडवोकेसी इज़ मोर टू डू विथ वेरियस स्टेक होल्डर्स ऑफ द सोसाइटी, जो हमने देखे, गवर्नमेंट हो गया, प्राइवेट एंटिटी हो गया, इंडिविजुअल हो गया, एक्सेट्रा, and not mere the Competition Commission in India. It is giving importance and focusing on various stakeholders. This has been based on 3 main steps of the Commission as per the resources. They are policy maker, number 1, central and state government, sectoral regulator as per their regulation, and lastly and most important, ultimate beneficiary in these regulation, that is public at large. तो पहले हो गए पॉलिसी मेकर, दूसरे सेक्टरल रेगुलेटर और तीसरे अल्टीमेट बेनिफिशियरी मतलब कंज्यूमर या पब्लिक। फॉरेन लेजिस्लेशन ऑन कंपटीशन एडवोकेसी, procedures that are prevailing in more countries establish and enable a regularized review and a comment on the legislation proposed by the competition agency of the concerning country. It is reported that there would be no use for competition agency to analyze and discuss all the legislations that are proposed and enacted by the parliament in its legislative session. So need क्या है? Need through the concept of competition law and policy intersects with the competition advocacy, with the stakeholders take part in the welfare of the market as a whole. ICN International Competition Network, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल नेटवर्क है कंपटीशन लॉ का, दे हैव डिसाइडेड कि हम एक कंपटीशन एडवोकेसी पे एक स्टडी करेंगे टू एनालाइज व्हाट, एनालाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ कंपटीशन एडवोकेसी अक्रॉस द ग्लोब। और फिर उनके रिपोर्ट्स में उन्होंने कंपटीशन एडवोकेसी को डिफाइन किया एज कंपटीशन एडवोकेसी रेफर्स टू दोज एक्टिविटीज़ दैट आर कंडक्टेड बाय द कंपटीशन अथॉरिटी, ऐसी एक्टिविटीज़ जो कंपटीशन अथॉरिटी कंडक्ट करती है रिलेटिंग टू प्रमोशन ऑफ कंपटीशन एनवायरनमेंट फॉर एनहांसमेंट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी बाय मीन्स ऑफ नॉन एनफोर्समेंट मैकेनिज्म, स्पेशली थ्रू इट्स रिलेशनशिप with secondary or other governmental entities and by increasing the awareness of the benefits of competition. मतलब यहाँ पे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमको प्रमोट करना है, सपोर्ट करना है, एनालाइज करना है नेचर ऑफ कंपटीशन एडवोकेसी को। इंटरनेशनल कंपटीशन नेटवर्क ने एडवोकेसी वर्किंग ग्रुप को एस्टैब्लिश किया है। सिमिलर पर्सपेक्टिव कहाँ मिला था? वॉज विटनेस्ड इन US, जहाँ पे फेडरल ट्रेड कमीशन ने कंसेप्ट ऑफ कंपटीशन एडवोकेसी को
एनेबल किया था। फॉरेन लेजिस्लेशन पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो सर्बियन कंपटीशन एडवोकेसी में जो रिसर्च कंडक्ट हुई थी वो बताती थी कि देयर इज़ अ एडवांटेज ओवर द मैटर्स या अदर्स रिलेटिंग टू कंपटीशन एडवोकेसी बिकॉज of the fact that they induce several advocacy tools and methods to enable a market with competition and has influenced the policymaker through its law on protection of competition. ये हो गया competition advocacy, मीनिंग इंडिया में क्या है, आउटसाइड इंडिया क्या है। मेनली मोटो यही है कि कंपटीशन को प्रमोट करना है, उसका अवेयरनेस फैलाना है। तो ये हो गया हमारा टॉपिक एनफोर्समेंट मैकेनिज्म। TCI देखा, उसका एस्टैब्लिशमेंट देखा, कॉन्स्टिट्यूशन देखा, पावर्स देखे, फंक्शंस देखे, फिर इन्वेस्टिगेशन होगा बाय डायरेक्टर जनरल, फिर कंपटीशन एपलेट ट्रिब्यूनल देखा, अपील हो सकता है 60 डेज़ में, डिले भी हो सकता है अगर कोई कॉज है, अगर कोई सफिशिएंट रीज़न है, और केस डिस्पोज ऑफ होगा विद इन 6 मंथ्स। एडजुडिकेशन अपील देखा। competition advocacy, उसका meaning in India, international perspective. So I hope you understood the topic. Thank you.